हम क्या करेंगे, फर्स्ट few minutes we will be having questions based on SQL, क्योंकि वो आप दोनों को IP और CS में पूछे जा सकते हैं, and a bit of computer networks. उसके बाद I'll have specific questions for CS and specific questions for IP Python में से. Let's start with the common part first. So your first question is, what is the purpose of in operator in SQL? SQL में हम in operator क्यों use करते हैं? Yes, raise your hand. Why do we use in operator in SQL? किसी को नहीं याद? Ma'am, it is a conditional based operator in SQL. We used this operator when we want to fetch some particular rows or columns in SQL. So it is used to check conditions in SQL, और इनका पर्पस ये होता है कि आपके पास एक कॉलम है and you want to check कि वो कॉलम की वैल्यू out of some values किसी से भी मैच करती हो. So we can write like where admission number in, और ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ 101, 105, 107. So that means तीनों में से किसी से भी अगर मैच करता है तो वो उसे शो करेगा, अदरवाइज नहीं शो करेगा. So जैसे पाइथन में इन का मतलब होता है मेंबरशिप ऑपरेटर. दैट मीन्स आप चेक कर सकते हो कि एक वैल्यू किसी रेंज के अंदर किसी सेट ऑफ वैल्यू से मैच करती है या नहीं. वैसे ही एसक्यूएल में भी इन यूज हो सकता है टू चेक कि एक कॉलम की वैल्यू एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से किसी भी एक से मैच करती है या नहीं. किसी से भी मैच करेगी तो इट विल गिव यू ट्रू और वो उसको शो कर देगा, अदरवाइज इट विल गिव यू फॉल्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच के रखोगे. आई विल बी बैक इन अ मोमेंट. दैट इज, व्हाट इज द डिफरेंस between your DDL and DML statements? I need at least 4 points of differences. This question, and the second question is difference between char and varchar data type. Again, 4 points of differences. तो दोनों के बीच में 4 पॉइंट्स आपने बताने हैं. ठीक है, और ये सोचने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, सो सोचो एंड देन रेज योर हैंड. DDL, ma'am, Yeah. ma'am, in DDL, mainly these commands are allow us to perform task related functions, or which is related to the structure of database objects. Okay. And ma'am, in DML, these commands are used to modify the data or manipulate the data. That is records or rows in a table, ma'am. ठीक है. Second point would be the DDL stands for data definition language and DML stands for data manipulation language. Right. Third point would be DDL. The examples of DDL are create, alter, drop. And in the examples of DML are insert, update, and delete. Right. Ma'am, and the fourth point would be DDL cannot be further classified, and DML can be classified into two types: Right. non-procedural DML and procedural DML. Very good. ये तो हमने नहीं पढ़ा है, बट आपने डिफरेंस बता दिया, दैट इज गुड. और एक और डिफरेंस हम कर सकते हैं, दैट इज कि जो डीडीएल कमांड्स हैं दे आर ऑटो कमिट. मतलब द मोमेंट यू राइट द कमांड द चेंजेस आर मेड परमानेंट इन द डेटाबेस और हम उसको अंडू नहीं कर सकते. whereas we have a command called rollback, जिसकी हेल्प से डीएमएल कमांड्स रोल बैक हो सकती हैं, मतलब अंडू हो सकती हैं. डीडीएल कमांड्स कैन नॉट बी रोल, राइट? So those are the differences between DDL and DML command. Second question मैंने आपसे पूछा था char और varchar में क्या difference होता है. So Chetna wants to answer that. Yeah, Chetna. Yes, ma'am. Ma'am, char is a fixed size string, whereas varchar is variable size string. Like, Right. if we have we have given char 30 and we write it.
So there will be 24 space, and all the space will be occupied. Like all the 30 space will be occupied. Where Hmm. at varchar 24 space are free. So there Hmm. so in varchar there will be no memory wastage, and in char we have a memory wastage, and char is a fast processing and varchar have a slow processing. वेरी गुड. सो 4 पॉइंट्स आर, पहला कि जो कैर है वो फिक्स साइज है, वैर कैर वेरिएबल साइज है. कैर में अगर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर करती हूँ एंड इट इज लेस देन द मैक्सिमम साइज, तो उसके पीछे स्पेसेस स्टोर हो जाते हैं एंड विल ऑक्यूपाई दैट मैक्सिमम साइज ओनली. whereas varchar में क्या होता है, रेस्ट ऑफ द मेमोरी इज फ्री. देन कैर में वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो सकती है, varchar में नहीं होती है. कैर की प्रोसेसिंग फास्ट है, varchar की प्रोसेसिंग स्लो है. सो ये आप एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर सकते हो. यू कैन एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स द डिफरेंसेस. कुछ लोग ये सोचते हैं कि कैर के अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स आ सकते हैं और वैर कैर के अंदर अल्फाबेट्स के साथ साथ हमारे पास डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स भी आ सकते हैं. दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. ठीक है. सो ये कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आपके पास कैर हो चाहे आपके पास वैर कैर हो. उसके अंदर हमारे पास कैपिटल लेटर्स भी आ सकते हैं, स्मॉल लेटर्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी आ सकते हैं. सो यू कैन हैव एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट. ठीक है. तो किसी भी तरह के कैरेक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं व्हेन यू आर वर्किंग विद कैर और वैर. जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ इस चीज में होते हैं कि उनकी मेमोरी में स्टोरेज कैसे होती है. फाइन. Ma'am, ओके. यस. I have a doubt. या टेल मी. DML के दो टाइप्स होते हैं, प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल. दूसरे टाइप्स भी होते हैं ना, लाइक इंटरैक्टिव एंड एम्बेडेड. तो टाइप्स पूछे तो कौन सा लिखूं वो मैं? टाइप्स आपसे कभी पूछे ही नहीं जाएंगे. दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ 12. ओके. ठीक है. वो आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे. हमारे पास जो है डीएमएल वो नॉन प्रोसीजरल वाली है. दैट वी जस्ट टेल व्हाट टू डू एंड इट परफॉर्म्स दैट टास्क. तो जो मेथड्स बनाने वाला काम होता है, प्रोसीजर बनाने वाला, वो आपके 12th में है ही नहीं. सो दे विल नॉट आस्क यू दीस फर्दर टाइप्स. ओके मैम. राइट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट रेज योर हैंड. अच्छा, इन का मैंने इससे पहले आपको दिखाया था बट वी डिडंट राइट दैट. सो इन की जो कमांड है वो हम कैसे लिख सकते हैं. इनमें अगर मैं आपको कहती हूँ कि वो सारी स्टूडेंट्स दिखाओ जो क्लास 10th 12th या 8th में है, तो मैं लिख सकती थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. ये व्हाइट बोर्ड पे अपने कर्सर्स मूव करना बंद करो प्लीज. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इन 8 10 12. तो इससे क्या होगा आपके पास. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इन 8 10 12. तो क्लास की वैल्यू अगर 8 है तो भी मैच करेगा, वो शो कर देगा. अगर 10 है तो भी मैच होगा, अगर 12 है तो भी मैच होगा. तो किसी के साथ भी मैच हो तो वो उसको शो करता है. तो इनका मतलब क्या हो गया कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्लास इज इक्वल टू 8 और क्लास इज इक्वल टू 10 और क्लास इज इक्वल टू 12. So any of the three conditions we could give. तो आप चाहे ऐसे लिख लो क्लास इन 8 10 12, चाहे आप इतना लंबा लिखो, तो आपको इजीली क्लियर है कि कौन सा मेथड बेटर है लिखने के लिए. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेज योर हैंड. व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूज कमांड इन एसक्यूएल. Purpose of use command in SQL. Raise your hand. Chaitanya. The use command is used to enter or work into any particular database. So it is used to work in a particular database. That means to make that database active, or you can say to open a database, we use command. Okay, fine. Next question. What will be the output of select count star from student if the, ये query है, if there are 5 records in the table. Raise your hand.
select count star from student. If there are 5 records in the table, इसका आउटपुट क्या होगा? Ma'am, output will be 5. आउटपुट विल बी 5, क्योंकि काउंट स्टार क्या करता है? नंबर ऑफ रोज काउंट करके देता है, ठीक है। बट इसी टेबल के अंदर मान लो एक कॉलम है जिसका नाम है सेक्शन। सेक्शन कॉलम के अंदर मेरे पास ए है, बी है, फिर उसके बाद कुछ भी सेक्शन है ही नहीं, फिर सी है और फिर से ए है। सो इफ आई हैव 5 स्टूडेंट्स, जिसमें से ये स्टूडेंट सेक्शन ए में है, ये बी में है, इसका सेक्शन मेंशन ही नहीं है, ये सी में है, ये ए में है, और मैं कमांड लिख दूं सिलेक्ट काउंट सेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट, अब क्या होगा? मैम तो भी 5 आया। मैम 4 Okay. because null value is excluded. वेरी गुड, 4 आएगा क्योंकि नल वैल्यू इज एक्सक्लूडेड, वो इसको काउंट नहीं करेगा। सो दिस वैल्यू विल नॉट बी काउंटेड। आपके पास जो आंसर होगा दैट विल बी 4। सो एग्रीगेट फंक्शंस में नल वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती हैं। सो वी डोंट इंक्लूड नल वैल्यूज व्हेन यू यूज एनी ऑफ द एग्रीगेट फंक्शंस। तो काउंट सेक्शन में आपके पास ये इंक्लूड नहीं होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोथ फ्रॉम वाइवा as well as theory point of view, दोनों में आपसे ये पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम हाँ जी। मैम काउंट स्टार में तो एम्प्टी वैल्यूज भी ऐड होती है। हाँ, तो काउंट स्टार का आंसर 5 आएगा ना, काउंट सेक्शन का 5 नहीं आएगा, उसका 4 आएगा। ओके। ठीक है, ओके। नाउ इफ आई हैव a table where I have data like color and dress, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, और टेबल का नाम है ड्रेसेस। सो दिस इज नेम ऑफ योर टेबल। अब कलर है रेड, ड्रेस है शर्ट, कलर है ब्लू, this is uh, this is what say coat, कुछ भी, this is again red, this is skirt, this is red again, and this is trouser, this is blue, this is a shirt, then I have white shirt. Now if you have to write down a query to display how many dresses we have in each color, what will be the query? How many dresses are there for each color? मैम डिस्टिंक्ट। How many Ma'am, can I say? dresses are there for each color? Yes, Ma'am, select count star from dresses group by color. very good. और आपको कलर का नाम भी साथ में दिखाना है, तो it should be select color, comma count star from dresses group by color. तो जब भी आपको कोई ग्रुप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, you have to perform a group operation and you have to do it on the basis of some column, you have to use group by over there. So ये होना चाहिए select color, comma count star from dresses group by color. So यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा? Who will tell me the output of this query? परिणीता, Yes, ma'am. बताओ आउटपुट। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैम कलर में मतलब कलर और ड्रेस तो हेडिंग हो जाएगी। कलर और काउंट हेडिंग हो जाएगी। हाँ, कलर और काउंट स्टार। हम्म मैम पहले रेड आएगा हम्म और उसमें मैम 3 आ जाएगा। राइट। फिर मैम ब्लू आएगा हम्म और मैम उसमें 2 आ जाएगा। राइट। और मैम फिर वाइट आएगा और 1 आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि 1 वाले को वो शो ना करे, सो व्हाट कंडीशन आई कैन गिव एंड कहाँ पे दूंगी मैं वो कंडीशन? वेयर वेयर कंडीशन दे सकते हैं मैम। क्या कंडीशन होगी? वेयर वाइट नहीं, वेयर कलर आई शुड वांट, मतलब आई वांट कि जिसका काउंट 1 है उसको ना दिखाए। हाँ तो मैम वेयर द कलर इज मैम इक्वल्स हैविंग टू यूज होगा 1। ना।
देखो कलर पे having दे a रहे हो तो वेयर लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो वेयर कलर इज नॉट इक्वल टू वाइट तो ठीक है। बट अगर मैं कहती हूँ कि मुझे कंडीशन ये लगानी है कि उसका जो काउंट है वो एक से ज्यादा होना चाहिए, तो फिर वो कंडीशन वेयर में नहीं आएगी, फिर वो हैविंग में आएगी, फिर वो यहाँ आ जाएगी, वो हो जाएगा हैविंग काउंट स्टार greater than ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो इट शुड बी हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। सो वो कंडीशन आपकी इसके साथ आती है। लेकिन अगर आप सिर्फ व्हाइट कलर पे लगा रहे होते तो वो आप वेयर पे लिखते हो और ग्रुप बाय से पहले लिखते। सो इंडिविजुअल कॉलम के ऊपर अगर कंडीशन होती है तो वो हम वेयर में देते हैं, बट अगर आप ग्रुप फंक्शन के ऊपर कंडीशन दे रहे हो तो वो हैविंग में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयुष ने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया था कि डिस्टिंक्ट लिखना होगा। तो अब आयुष हमें आंसर करेगा कि अगर मैंने यहाँ लिखा होता सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कलर फ्रॉम ड्रेसेस, तो इसका आंसर क्या होता? मैम 3 होगा इसमें अब। 3 लिखा हुआ आएगा आंसर। हम्म, आई क्या थिंक आयुष सो। सही कह रहा No, ma'am. no है? ma'am. नो। वो काउंट के व्हाट साथ आएगा। विल एग्जैक्टली वो तब आता अगर आपकी क्वेरी ये होती सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट के साथ ब्रैकेट लगाना ऑप्शनल होता है, लगा भी सकते हैं या स्पेस भी दे सकते हैं। अगर ये क्वेरी होती तो आपका आंसर 3 आता, लेकिन ऊपर काउंट तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? रेड ब्लू व्हाइट। रेड ब्लू व्हाइट। सो इट विल शो ऑल द कलर्स विदाउट रेपिटेशन। सो डिस्टिंक्ट का मतलब है कि वैल्यूज शो करो जो डिफरेंट डिफरेंट है, रिपीटेड वैल्यूज आपकी शो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ डिस्टिंक्ट। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी की कंस्ट्रेंट? मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में वो ड्रेसेस शो नहीं करेगा ना उसके साथ? नहीं, सिर्फ कलर शो करेगा, ओके क्योंकि हमने मैम, डिस्टिंक्ट अगर कलर शो सेलेक्ट किया। में ड्रेसेस भी होता तो वो शो करता। हाँ, अगर सिलेक्ट के साथ लिखा होता तो शो करता। ओके Ma'am, can I see the answer? फॉर द नेक्स्ट वन कंस्ट्रेंट Yes ma'am. प्राइमरी की, हाँ बोलो Primary दिव्यांश। यस, दिव्यांश विल आंसर। ma'am, primary key states that uh, there should be no duplicate values and field should not be null. सो मैंने आपसे स्पेसिफिकली कंस्ट्रेंट पूछा है, कंस्ट्रेंट का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस। तो आप बताओगे क्या रिस्ट्रिक्शंस हम इम्पोज करते हैं प्राइमरी की से। सो 2 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वेरी गुड दिव्यांश, कि आपके पास नो डुप्लीकेट वैल्यू कैन बी इंसर्टेड। सो नो डुप्लीकेट वैल्यू कैन बी इंसर्टेड and cannot be left blank. अच्छा, as per that, next question is, what is the difference between primary key constraint and not null constraint? हमारे पास एक not null constraint भी होता है। तो अगर primary key यस से ये मैम। होता है तो primary key and not null constraint में क्या difference है? नॉट नल कैन हैव रिपीटेटिव वैल्यूज। Very good. So दोनों को खाली नहीं छोड़ सकते, ना तो primary key को ना ही not null को, but not null can have duplicate values. Any other difference? हम Any सीएससी other पूछ रहे हैं। हम difference? प्राइमरी के एक ही बार लगा सकते हैं, लेकिन नॉट ना एक बार बार लगा सकते वेरी गुड पीयूष। सो प्राइमरी की हम सिर्फ एक ही बार लगा सकते हैं कंस्ट्रेंट टेबल में, लेकिन नॉट नल हम मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर लगा सकते हैं। सो नॉट नल कैन बी गिवन मल्टीपल टाइम्स, whereas प्राइमरी की इज गिवन ओनली once. So that is another difference between the two. ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि डुप्लीकेट वैल्यूज मैम। नहीं हो नहीं सकती समझा। प्राइम। देखो, प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, नॉट नल में हो सकती है। जब आप एक टेबल बनाते हो तो आप एक ही कॉलम के आगे प्राइमरी की लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अगर एक टेबल बना रही हूँ, मैंने यहाँ पर बनाया क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प ले लिया, और यहाँ पर आपने लिखा एम्प आईडी इंटेजर, और आप इसको प्राइमरी की दे देते हो। फाइन। अब आप किसी भी और कॉलम के आगे प्राइमरी की नहीं लिख सकते, अगर लिखोगे तो एरर आ जाएगा। तो आप एक ही कॉलम को प्राइमरी की मेंशन कर सकते हो इफ इट्स नॉट अ कॉम्पोजिट की, वो अलग केस हो जाता है। बट यहाँ सामने लिख के मैं सिर्फ एक ही कॉलम को प्राइमरी की बना सकती हूँ, लेकिन मैं नॉट नल कितनों के सामने भी लिख सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि नेम हो 50 characters maximum, it should not be left blank, so it is not null. Then I want salary हो, ठीक है। अब हर कोई सैलरी के लिए काम करेगा ना, फ्री में तो कोई भी नहीं करेगा, तो सैलरी भी जो है वो
नल नहीं होनी चाहिए, शुड बी नॉट नल. सो आई कैन गिव नॉट नल टू मल्टीपल कॉलम्स. तो ना तो मैं नाम खाली छोड़ सकती हूँ, ना सैलरी खाली छोड़ सकती हूँ. जॉब अभी हमने डिसाइड नहीं की कि उसको डेजिग्नेशन क्या देनी है, तो उसको हम चाहें तो खाली छुड़ा सकते हैं. बट जिसके आगे आप नॉट नल लिख रहे हो वो ब्लैंक नहीं हो सकता. सो नॉट नल कंस्ट्रेंट कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स इन अ टेबल, whereas प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज यूज्ड ओनली वंस इन अ टेबल, क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है. इज इट क्लियर नाउ? Yes. Okay. Yes, ma'am. Next question. What is Cartesian product of two tables? Ma'am, may I? Anyone else except Sresht? Cartesian product of two tables. भूल गया सब कुछ। मैम मैं बताऊँ? याद कब आएगा? मैम अब कौन? आएगा 20 मार्च। चेतना, Yes, ma'am. Ma'am, Cartesian बताइए. is each row of the first table is linked with the uh, linked with Hmm. each second table. Each row of first table is linked with each row of another table. अच्छा, अगर मान लो पहले टेबल में 5 रोज हैं, दूसरे टेबल में 3 रोज हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितनी रोज आएंगी? 15. वेरी गुड. सो इट विल बी मल्टीप्लाइड. सो कार्डिनैलिटी जो है वो मल्टीप्लाई होती है, तो 15 रोज होंगी. और अगर कॉलम्स में बोलूं तो कॉलम्स क्या होंगे? ऐड होंगे. अगर आपके Yes, ma'am. पास फर्स्ट टेबल में 6 कॉलम्स हैं, दूसरे में 2 कॉलम्स हैं, तो आपके पास टोटल 8 कॉलम्स आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, अगर आपने सिलेक्ट के साथ स्टार लिखा हुआ है तो. अगर कॉलम का नाम लिखा है फिर तो ऑब्वियसली सिर्फ उसी कॉलम को दिखाएगा जिसका नाम लिखा हुआ है. बट इफ यू हैव सिलेक्ट स्टार, then it is going to show you all the columns. So it will be 8 columns. Chetna, you want to ask something? No. Okay. अच्छा, अब specific to IP questions पूछूंगी. IP students will answer. What will be the output of select round 1836.752, comma 1? 1836.8. 1836.8. दिव्यांश सही कह रहा है श्रेष्ठ? Yes, ma'am. यस मैम सही है। आज आईपी की स्ट्रेंथ कम लग रही है यहाँ पे, है ना? आज सारे सीएस वाले हैं, कल आईपी वाले जीत गए. नहीं, जीती तो चैतन्या थी ना नंबर 1 पे. ओके, कोई नहीं. सो मैम सिलेक्ट कल राउंड. नेक्स्ट है हमारे पास मैम कल सिलेक्ट क्या हुआ था? क्विज, वो अनअकैडमी वाला, कब? मैम लाइट कट गया था। रात को 9 बजे. What will be the output of this? बताइए. क्या हुआ? हेलो वर्ल्ड में यहाँ पर स्पेस नहीं है, मतलब H is the first letter. Ma'am, you have written the question on the whiteboard. हाँ, Ma'am, I it's am not unable visible. to. Ma'am, not to me. I am finding it difficult to handle the whiteboard. Okay. Divyansh, can you read the question on the whiteboard? Yes, ma'am. थोड़ा adjust करना पड़ रहा है. It is select mid, डबल कोट्स में है hello space world, comma 5, comma 4. मैम वो 5th स्ट्रिंग से लेके 4 तक दिखाएगा. तो 5th पे है O, फिर आएगा स्पेस, फिर आएगा W, फिर आएगा O. तो your output will be O space WO. Okay. Then tell me, what is the purpose of T attribute of a data frame? Ma'am, डेटा transpose. फ्रेम के T attribute से क्या होता है? Transpose Row. means what?
rows and columns reversed. Rows and columns are interchanged. So columns becomes rows and rows become column. Okay, so that is the purpose of T. Which method you use to change the index in a data frame? If you want to मैम change df selected, if you want to change selected index in the data frame, which method is used for that? df dot index is equal उससे तो to सारे चेंज हो जाएंगे ना. आई एम आस्किंग सिलेक्टेड. df dot index is equal to लिस्ट में आपको सबके इंडेक्स देने पड़ेंगे. I want to change selected index. मैम log function नहीं. मैम इंडेक्सेस चेंज करने हैं तो फिर मैम हम उसको रीनेम से कर सकते Yes, rename से कर सकते हैं. So we will be writing df dot rename और फिर आप राउंड ब्रैकेट में इंडेक्स इज इक्वल टू डिक्शनरी फॉर्म में बता सकते हो कि पुराना इंडेक्स क्या था और नया इंडेक्स आपको क्या चाहिए. सो वी कैन स्पेसिफाई व्हाट वाज द ओल्ड एंड व्हाट न्यू यू वांट एंड उसके साथ आपको लिखना पड़ता है in place is equal to true. Why do we have to write in place is equal to true? मैम ताकि चेंजेस करंट डेटा फ्रेम में हो. Very good. ताकि changes current database में हो जाए. That's why we need to write in place is equal to true. Okay. Which command we use to change the titles of x-axis and y-axis when we draw a chart in Python? मैम plt for example I have plt imported, so plt dot x labels and y labels. plt dot x label and y label. Very good. उसकी help से आप headings change कर सकते हो x-axis and y-axis की. Which command do you use to install Pandas library? pip install panda. Very good. Okay. What is the purpose of star sign when used with a series? Like if I have import pandas as PD and I have a series जिसमें मेरे पास है 10, 20, 30. S1 is equal to PD dot series and bracket में मैंने दे दिया 10, 20, 30. और मैं print कराती हूँ S1 multiplied by 2. So what will it perform? हम scalar मैम it will multiplication. concatenate. No, it will perform scalar multiplication. So concatenate नहीं होता, replicate होता है अगर list होती तो. पर ये series है और series के साथ अगर आप series into 2 करते हो, so it performs scalar multiplication. आपका पहला एलिमेंट 10 था, वो 2 से मल्टीप्लाई होके 20 हो जाएगा. सेकेंड एलिमेंट 20 था, वो 2 से मल्टीप्लाई होके 40 हो जाएगा. थर्ड एलिमेंट 30 था, वो 60 हो जाएगा. एंड द डी टाइप विल बी int 64 क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज इंटीजर है. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम पाइथन. int 64 का क्या मतलब होता है? मैम integer values are given in the output. What is the purpose of 64? int 32 भी होता है, int 16 भी होता है. What is int 64? मैम 64 bits होता है. 64 bits होता है. That means one integer आपको 8 bytes यूज करेगा. 64 bits. ठीक है? Good. Okay, now computer science students. आपके लिए question. What is the purpose of rand int function in Python? बताइए. Purpose of rand int function. पीयूष. मैम रैंडम फंक्शन में हम लास्ट फर्स्ट वैल्यू से लेके लास्ट वैल्यू तक पूरे नंबर्स लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 0 to 5 लिया तो पूरा वो फिर पूरा 0 से 5 तक देगा हमको वैल्यूज. तो अगर मैंने random dot rand int 3, 7 लिखा तो तो क्या मैम वो होगा? 3 से लेके 7 तक पूरी पूरी वैल्यू. तो 3 से लेकर 7 तक पूरी वैल्यू आएगी. That will be 3, 4, 5, 6,
7, इसमें से कोई भी एक रैंडम नंबर वो हमें जनरेट करके देगा। यस तन्मय? नहीं मैम, वो आंसर ही बोल रहा। अच्छा, सो आप बताओ, अगर मैंने यही चीज रैंड रेंज में लिखी होती, रैंडम डॉट रैंड रेंज 3,7 लिखा होता, तो क्या होता? मैम वो 3 और 7 के बिटवीन में डेसिमल वैल्यू कोई भी दे देता रैंडम। आर यू श्योर? ये भी आपको इंटीजर ही देगा, मैम लेकिन 3 से इसमें 6 तक देगा। अपर इंडेक्स एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, सो दोनों ही फंक्शंस आपको इंटीजर वैल्यू देते हैं, रैंड इंट भी और रैंड रेंज भी। द डिफरेंस इज कि रैंड रेंज में अपर इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड, 7 कभी नहीं आएगा। दूसरा फर्क ये है कि रैंड इंट में आप हमेशा दो नंबर्स दोगे, आप स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर दोनों नंबर स्पेसिफाई करोगे। whereas इन केस ऑफ रैंड रेंज हम यहाँ पर चाहे तो एक नंबर भी दे सकते हैं, जैसे मैं रैंड रेंज 5 भी लिख सकती थी। अगर मैं सिर्फ 5 लिखूंगी तो वो रैंडम नंबर जनरेट करके देगा 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई भी। अगर आपने 3,7 लिखा है तो 3, 4, 5, 6 में से कोई भी। और आप इसमें 3 नंबर भी पास कर सकते हो, आप इसमें 3 नंबर्स पास कर सकते हो, दैट इज स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। आई कैन राइट 2, 10, 2, so it will give you any random number from 2, 4, 6 or 8. तो रैंड रेंज इज सिमिलर टू रेंज जो हम फॉर लूप के साथ लगाते हैं, बस ये आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। और रैंड इंट जो है वो हमेशा दो नंबर्स ही लेगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, एंड उसके बीच में वो आपको कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। सो दीज आर इन योर रैंडम लाइब्रेरी। तीसरा फंक्शन जो है वो कौन सा होता है? उसका नाम ही होता है रैंडम। वो क्या रिटर्न करता है? मैम 0 से 1 तक की जितने भी डेसिमल वैल्यू सारे। 0 से 1 तक की कोई भी डेसिमल वैल्यू जिसमें 1 एक्सक्लूडेड होता है, 1 कभी नहीं आता। ठीक है, ओके। श्रेष्ठ एंड दिव्यांश, इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद दीज क्वेश्चंस, सुनना है तो आप रुक सकते हो, अदरवाइज इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, क्योंकि अभी आईपी का और कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अभी सिर्फ सीएस वाले पाइथन के क्वेश्चंस पूछूंगी मैं। ठीक है, Yes, ma'am. So, ma'am means they won't come for the IP syllabus, right, ma'am? नो 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 नो। Okay, ma'am. So, ma'am, Okay, may I leave? यस यू कैन लीव। Thank you, ma'am. ओके, गुड मैम मैं तो रुकूंगा, कोशिश करूंगा आंसर देने की, नॉलेज मिल। नाइट। जरूर दिव्यांश। ओके, next question is, what is the purpose of keyword arguments, or what are keyword arguments? What are keyword arguments? Keyword arguments are those arguments which are declared in the function call. That is, we like declare a variable, and also along with it we assign a value to it, so that the function or parameter that which we have gets the exact same value which we passed. So it is basically, keyword क्या होता है? Like we normally define keyword as a reserved word, and it can be used only for that purpose. Similar way, keyword arguments are when you call a function. आपको इतना पता है कि आपके पास argument और parameter क्या होता है, ठीक है? So argument is what you pass in the call, and what you receive is called parameter. So आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि argument और parameter क्या होता है? Like अभी मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिखा है स्क्रीन पे, if you check that, सो आप उसमें अगर देखोगे और आप यहाँ पर ये देखते हो कि मैंने कॉल करते टाइम कुछ वैल्यूज पास करी है, तो जो वैल्यूज मैं पास कर रही हूँ उनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, और जहां पर आप रिसीव कर रहे हो उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। अब नॉर्मली जो होते हैं ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि ऊपर 3 रिसीव हो रहे हैं तो नीचे से 3 ही भेजने हैं। सो आप यहाँ से 3 सेंड कर रहे हो, ऊपर 3 रिसीव हो रहे हैं, जो 10 है वो ए में जा रहा है, 15 है वो बी में जा रहा है, 20 है वो सी में जा रहा है। सो दैट इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पे 4 पास करूंगी तो भी एरर आ जाएगा, मैं 2 पास करूंगी तो भी एरर आ जाएगा। हैव टू पास एग्जैक्ट 3 एंड इन द सेम ऑर्डर। पहला वाला ए में जाएगा, दूसरा वाला बी में जाएगा, तीसरा वाला सी में जाएगा। Now, keyword arguments is that you can tell which value has to go in which argument irrespective to their position.
So अगर आप यहाँ पर एक कॉल लिखते हो print check and you write B is equal to 18, C is equal to 25, comma A is equal to 10. आपने आगे पीछे लिखा है, बट इसमें जो A है उसमें 10 जाएगा, जो B है उसमें 18 जाएगा, और जो C है उसमें 25 जाएगा. So I have mentioned the name of the arguments in the function call, and irrespective of the position, the values will go to those parameters only. Such arguments are called keyword arguments. So आपसे अगर पूछा जाए what are keyword arguments, so you can specify that keyword arguments are named arguments where we tell the name of the parameter along with the value while calling the function, and irrespective of the position, the value goes into that variable only. That is called keyword argument. बस एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी होती है कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स जहां पे आपने शुरू कर दिया उसके पीछे सारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ही होंगे. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स उसके पीछे नहीं हो सकता. वी कैन हैव पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बिफोर, but once you start giving keyword arguments, then there cannot be a normal value. Then all have to be keyword arguments only. Okay, so that has to be taken care of. Okay, next question. What is the difference between text files and binary files? Difference between text files and binary files. Piyush. Ma'am, text file are human readable. On the other hand, binary files are not human. Okay. Okay. मैम बाइनरी में हमको इंपोर्ट पिकल करना पड़ता है. टेक्स्ट फाइल में हमें कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती. स्टोरेज का डिफरेंस बताओगे मेन कि टेक्स्ट फाइल में एवरीथिंग इज स्टोर्ड एज कैरेक्टर, स्काई या यूनिकोड फॉर्म में कैरेक्टर स्टोर होते हैं, जबकि बाइनरी फाइल में आपका जो डेटा है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones. टेक्स्ट फाइल का साइज लिमिटेड होता है, बट बाइनरी फाइल्स कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. ठीक है, so that is the difference between text files and binary files. Okay, what is the purpose of tell method? The differences. Hanji, can you repeat the differences? Text files are in human readable format, whereas binary files can be read by the computer only or the Python program. Then text files store everything in the form of a string, means text. So all the data is stored in the form of text as well as read as a string only from the file. So आप store भी string को करते हो, read भी string को ही करते हो file में से. And binary में data is stored in the form of zeros and ones. Integers are stored as integers. Floats are stored as floats. So जैसे data type है उसी data type में store होता है, उसी data type में हम उसको वापस read भी करते हैं. We need pickle module to work with binary files. We don't need pickle module to work with text files, or we don't need any module to work with text files. And then you have text files have a limited size. Binary files don't have a limitation on the size. Clear? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही थी मैं आपसे, टेल मेथड किस लिए यूज होता है? Ma'am, to show his टू current position. current position of the file pointer. So it is used to show the current position of the file pointer. ठीक है, कि आपका फाइल पॉइंटर अभी फाइल में कहां पर है. ओके, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लिफो? First एक्सप्लेन in, द last out. प्रिंसिपल ऑफ लिफो. First in, last out. बेटा लिफो की फुल फॉर्म ही नहीं Last बन in रही है ये first. आयुष. Ma'am, it is used in stack. पहले फुल फॉर्म तो सही बताओ. इट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. अच्छा, So last last first in, first out. It is used in stacks. मतलब क्या हुआ? Can you give an example? मैम भंडारा में A play. pile of books. A pile of books. So whenever you have to insert something, it will be inserted on the top. And when you remove something, it is removed
from the top. So insertion is always done at the top. What do we call that operation? क्या बोलते हैं उसको? मैम append No, append के थ्रू करते हैं, but उसको बोलते क्या है हम technically? push Push. And removing from the top को क्या बोलते हैं? Pop. Pop. So when you insert an element at the top of the stack, it's called push. When you remove, it is called pop. Okay. What do you understand by the term exception? मैम it help us to क्या बोल सकते हैं I'm asking what is the meaning of the word exception? मैम don't know exception Anyone? is an anomalous situation which often disrupts the flow of the execution of a program. Exactly. In simple word, it's a It is a runtime runtime error. error. ठीक है? So exception means a runtime error जिसकी वजह से आपकी program execution बीच में ही रुक जाती है. So when you get a runtime error, the program execution stops in between and we call it, जो इसका proper word है, we call it exception. And then we have a technique called exception handling जो आपको help करती है to deal with runtime errors. So exception handling is a technique to deal with runtime errors. तो आपको किस तरह से runtime errors पे काम करना है? Is a technique to deal with is it only for runtime error or only for runtime errors. Which keywords are used for this? for what For exception handling, which try and keywords we accept use? Try and accept. ठीक है? So इसको पढ़कर आना. तो next class में I'll be asking more questions about exception handling in Stack also. अभी आप मुझे बताओ, which method of pickle module is used to store the data in a file? मैम load pickle dot load Dump सही कह रहा है? dump. Dump. लोड रीड करने के लिए होता है. मैंने पूछा है स्टोर करने के लिए क्या मैम यूज सब भूल होता है. गया तो आइए कुछ रिवाइज शुरू करो ना करना. कब करोगे? मैम कल तो इट्स 1 घंटे में पिकल डॉट, अच्छा कल देखते हैं फिर. पिकल डॉट डम्प. ठीक है? आपकी अभी रोज 9 o'clock क्लास होगी एंड वी विल बी मैम हैविंग मैम वाइवा. मैम तो मैम कल याद करके आना अच्छे से. वन मैम कल शॉट क्विज होगी हमारी. मैम मैम वन कल शॉट पूरे सिलेबस की सेंड कर क्विज रख देना लो. वन शॉट तो आप पेपर से पहले ही करेंगे. मैम मैम परसों सेंड कर पेपर दो है. तो आप पढ़ो, डाउट्स पूछो, मैम सेंड कर दो सेंड कर दो. अच्छा सेंड कर देते हैं. यस मैम, और कल क्विज भी रख लो अगर पॉसिबल. क्या रख दो? मैम क्विज भी रख लो अगर पॉसिबल हो. मैम इसका बात मत सुनो आप सेंड कर To store the data in the file, to read the data from the file. ठीक है? So we have pickle dot dump, pickle dot load. So ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है? And similar way you should know कि हम CSV को import करते हैं. तो CSV reader and CSV writer किस लिए यूज होता है. But there are many questions जो हम रोज अभी practice करने वाले हैं कुछ दिन के लिए. So I hope आज के questions सबको clear होंगे and you should be able to answer that confidently. आप चाहो तो एक register में जो आपने practice के लिए बनाया है उसमें साथ साथ ये questions लिखते रहो. So that whenever you have your practical exam, you should just go through it. एक reading दोगे and you are all sorted for your viva. ठीक है? So that is it for today. I'll see you tomorrow with more set of questions and try to answer more. आप खुद कोशिश करो आंसर करने की. वही 2-4 ज्यादा आंसर करते रहते हैं. जो आंसर कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो जाएगा. बट ठीक है, अभी आप इनिशियली सुन रहे हो, बट ट्राई टू गिव आंसर्स. ट्राई टू रेज हैंड एंड कम्युनिकेट ताकि आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे भी डर ना लगे आंसर देते हुए. ठीक है? राइट अंश, आपने आज एक भी आंसर नहीं दिया है. Tanmay at least gave one answer. ठीक है? So participate more, try to give more answers. That would be better for your confidence as well as for your practice. Fine?